ಬೇದರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಶಾ ಬಾಕರ್ ಹುಸೇನಿ ಸಾಬ್ ಆಶೂರ್ ಖಾನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಿಪಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೈಯದ್ ಜಾಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮುತುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಂಶಾವಳಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಯದ್ ಹಿಮಾಯತ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಶಬೀರ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 10, 2024 ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೇ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೀದರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೊರೆ ಹೋದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೀದರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ನಮಗೆ 10 ದಿವಸದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 20 ದಿವಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರುವುದು 3 ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕಚೇರಿ ಈ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ 4-5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಬೀದರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ SP ಅವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. मेरा नाम सैयद जायद हुसैन है। मैं शाखामुश रहमतुल्लाह अलैह की पूरी प्रॉपर्टी का GP होल्डर हूँ। लिहाजा मेरे भाई को यहाँ पर मुतवली ग्रांटेड किया है। आशूर खाना है ये शहीद शाह बाकर हुसैनी साहब का, जिसमें मुतवली जो है 10 जून 2024 को अलाटमेंट हुआ वक्फ बोर्ड से। होने के बावजूद भी 1 साल हो गया, आज 2025 आ चुका है, जिसमें आज 20 तारीख है जून की सॉरी। हम वक्फ बोर्ड के, हम DC साहब के पास, AC साहब के पास से ऑर्डर लेने के बावजूद भी, पुलिस प्रोटेक्शन के वास्ते हमको ऑर्डर करने के बावजूद यहाँ पे लास्ट टाइम पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया हमको। देने के बाद वक्फ ऑफिसर साहब आके यहाँ पर 4 जून 2025 यही मंथ की 10 दिन का टाइम फिर अपोजिट पार्टी को दिलाए हमारे पास से। दिलाने के बाद फिर आज 2020 आ गया। टाइम वो वक्फ ऑफिसर दिलाए सबको टाइम, पता नहीं, वो आके उन्होंने कुछ बात कर लिया उनसे, बात कर लेके बोले कि 10 दिन का टाइम देंगे उनको पेपर प्रिपरेशन के वास्ते बोल के। पेपर प्रिपरेशन करे उन्होंने, करने के बावजूद भी आज फिर 2025 का 20वीं तारीख भी आ गई। हम DC के पास, AC के पास, वक्फ बोर्ड के हम चक्करा मार रहे हैं, लेकिन हमारे राइट्स हमको नहीं दिला रहे। अब सुबह से मैं जाके पुलिस स्टेशन, SP के पास जाके, सर्कल साहब के पास जाके, कोई मिलने को तैयार नहीं है। अब फिर 4-5 दिन के बाद फिर अलार्म स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे मुहर्रम चालू होने वाला है। लिहाजा हमारे राइट्स हमारे दिलाने के लिए थोड़ा सा आप जो भी है वक्फ बोर्ड से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारे को राइट्स दिलाए जाए। क्या राइट्स हमारे राइट्स जो है, हमको मुतवली ग्रांट होने के बाद हमको वहाँ का मुतवली के इख्तियारात नहीं दे रहे वहाँ पे हमारे। ये सैयद हिमायत अली साहब मेरे बड़े भाई है। नहीं दिए तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? नहीं दिए तो क्या करना साहब, बोलिए आप। नहीं, कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद SP साहब का लेटर है मेरे पास। SP साहब का ये लेटर है मेरे पास। DC साहब उनको लेटर दिए, SP साहब ऑर्डर दिए, फिर उसके बाद हमारे साहब शिरवन साहब ऑर्डर दिए, AC साहब ऑर्डर दिए कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे के इनके राइट्स दिलाओ बोल के। उसके बाद ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है मेरे पास।
ट्रिब्यूनल ऑर्डर होने के बाद फिर डीसी साहब के पास ऑर्डर मिला मेरे को। 15 दिन से खाली पुलिस कस्टडी में उन्होंने चाबी ले लेके चले आते बोल के 10 दिन का टाइम दिलाया उनको। 10 दिन के बाद हम जाके पूछे तो उन्हें वफ ऑफिसर बोलता है कि मेरे को 10 दिन का टाइम दिए थे ना, 10 दिन के बाद आओ बोले। 10 दिन के बाद गए तो फिर उनको कॉल करके उनको वो पूछते उन्होंने, साहब आपका टाइम हो गया क्या 10 दिन, हम आना क्या बोल के उनको पूछ रहे हैं बात। कि उनको ऐसा दिख रहा है कि उनको स्टे ऑर्डर दिलाने के चक्कर में दिख रहे जैसा दिख रहा मेरे को ये वफ ऑफिसर। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो है सपोर्ट कर रहा था। तुम कहाँ गए थे? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बोलो तो पूरा गए। एसपी साहब के पास गया मैं, डीएसपी साहब के पास गया, सर्कल साहब के पास गया मैं। सर्कल साहब क्या कर रहे हैं? सर्कल साहब 10 दिन का टाइम दिलाए थे। तो बेंगलुरु से भी विजिट हुई थी ना साहब हेड ऑफिस से? हाँ हो गया, ऑर्डर मिला उनका भी, इनको इनका राइट्स दिलाओ बोल के। है आपके पास? हाँ है, मेरे पास कॉपी है इसका, पूरे ऑर्डर्स कॉपी है मेरे पास। ये ऑर्डर मानना ना नहीं मान रहे उसको वायलेट कर रहे हो लोग ऑर्डर को। प्रॉब्लम है, उनको कुछ मांग रहे क्या? कुछ नहीं, खाली कल आओ। वफ ऑफिसर बोलता है कि सर्कल साहब आए तो आता हूँ, सर्कल साहब बोलते हैं कि वफ ऑफिसर आया तो आता हूँ बोलते। उनके टाइम पे दोनों मैच नहीं हो रहे। एक के ऊपर उन्होंने ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं आता, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आता, उन्होंने नहीं आ रहा बोलते। अब किससे मुतालबा कर रहे हैं आप राइट्स के? मैं सीधे मैं वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहा हूँ कि मेरे राइट्स मेरे को दिलाए जाए। मेरे को जब मुतवली बोल के 1 साल पहले ग्रांट करे, 1 साल हो गया पूरा, आज 1 साल 10 दिन हो गए। आज 10 जुलाई 2024 में मुतवली बोल के ग्रांट होने के बावजूद भी आज 2025 जुलाई 20 हो गया। 1 साल से पूरा चक्कर हमारा इधर से उधर, उधर से उधर। वक्फ ऑफिसर एक के ऊपर एक डालते, वो एक्ट के हिसाब से जाओ, ये एक्ट के हिसाब से जाओ बोल के। किसके पास जाना बोलिए आप मेरे को? पूरा एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनका साथ दे रहा। ये वक्फ बोर्ड बिदर वालों को दिए, उसको भी नहीं मान रहे वो लोग। आप पूछे ना उनको, ये है मेरे पास? रोज जा रहे हैं, सुबह जा रहे, बातें सुनने, दोपहर में आओ, साहब नहीं है, बड़े साहब नहीं है, छोटे साहब नहीं है, एक के ऊपर एक ढिकल ले रहे हो लोग। बेंगलुरु के वक्त ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसको पर क्या कर रहे हैं? बिदर वाले आपका तो राइट होता भाई, जरा कानून के हिसाब से जाना, कानून के हिसाब से जाना बोल के 1 साल पूरा खराब कर डाले पूरा। वफ ऑफिसर हमारे को ये बात पूछ रहे कि तुम जब मुतवली लिए, तुम्हारा उतना गट्स नहीं है, तुम्हारे पास उतनी हिम्मत नहीं, तो मुतवली क्यों लिए कहते मेरे को, ये क्वेश्चन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? बॉडी बिल्डर करके एक गुंडा बन के आना शायद मुतवली बनने के वास्ते। कौन कहाँ के ऑफिसर पूछ रहे हैं? ये लोकल के ऑफिसर्स पूछ रहे मेरे को ये बात। कब पूछा आपको? मेरे को कल पूछे, ये 2 दिन पहले क्या नाम है उनका? जी ऑफिस में पूछे मैं। आप गए थे? मुतवली क्या रहता बोले तो मैडम एक वक्फ प्रॉपर्टी रहती है, वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन, उसको सुपरवाइजिंग करने को मुतवली बोलते हैं। सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर वहाँ पे गवर्नमेंट अलॉटमेंट करने के बाद गवर्नमेंट के लेटर में कहीं पे भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है जो, उसके अंदर ये इनको वायलेट करके, इनको निकाल कर ये मुतवली दियो बोल के नहीं आता। मुतवली जिसको ग्रांट आता है उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। यहाँ पर अब ऑफिसर्स नए दूसरे पुलिस कस्टडी वाले जो बता रहे मेरे को कि इसके अंदर वो पुराने मुतवली को हटाओ बोल के कहाँ है इसके अंदर मेंशन करे, वो बताओ बोल के। लगे से भी इससे भी बता चाहता हूँ। नहीं रहता उसके अंदर, इसके अंदर कोई नहीं रहता मैडम। एक गवर्नमेंट पोस्ट है, ये भी आपको जितने पीरियड के लिए आपको अलॉटमेंट किया गया है उतने पीरियड के टाइम तक आप रहते हैं। इसके बाद कौन था? जिसके दूसरे को अलॉटमेंट करे तो ऑटोमेटिक उन्हें आ जाता है वहाँ पर। कौन था यार? जो गवर्नमेंट वही वक्फ वाले करते। अब पहले वाले को हटा दिए, डॉक्यूमेंट जब शो करते हम कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, वो तो पहले वाले को उन्हें सही काम नहीं कर रहा था, या उन्हें ख़ानदान का नहीं है, या वो उसके साथ जो वंशवाणी रहती है, वंशवाणी के हिसाब से उन्हें फिट नहीं बैठता है तो उसको नहीं देते। तो वो पहले वाला जो वंशवाणी के हिसाब से फिट नहीं था वहाँ पर। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हमको दिए। पहले कि हमारे पास ग्रांट लेटर है, हमारे पास उस टाइम पे निज़ाम गवर्नमेंट का ग्रांट लेटर है हमारे पास, उर्दू का कॉपी है। डीसी साहब के पास, एसी साहब के पास ऑलरेडी इसकी हैंड ओवर नहीं करे, खाली पेपर में हैंड ओवर है हमारे को, पेपर में हैंड ओवर है, लेकिन पोजीशन के ऊपर दूसरे लोग है। वो हमारे को तावीज़ बना लेके फिरो बोल के डाले पेपर ये। पोजीशन पे कौन है उनका नाम बोलो ऊपर? हाँ पोजीशन पे पहले से है क्या? पहले थे क्या? नहीं थे उन्होंने, बीच में है उन्होंने। उनसे पहले कौन थे? हम लोग इस थे पूरे। हमारे पास 1980 से रिकॉर्ड है, 1890 से रिकॉर्ड है हमारे पास, 1890। इससे पहले आपके कौन थे? हम लोग इस थे वहाँ पर। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के बाद ग्रैंडफादर के बाद उनके भाई आए छोटे, वो दोनों भी, उनको बच्चे नहीं थे। उसके बाद उसके अंदर क्या था, वो गज़ेट के अंदर 3 भाइयों के नामा लिखे हुए थे। कलीमुल्लाह हुसैनी, ये गज़ेट है, वक्फ बोर्ड की गज़ेट है
गजीट के अंदर कलीमुल्ला हुसैनी, महमूद हुसैनी, शबीर अली साहब। किसके? शबीर अली के ग्रैंडसन में। ये लोग सब आके बैठे कौन? सामने वाले 2010 में 10 से है। नहीं, 2010 में आए, उनको अलॉटमेंट करे 3 साल के वास्ते। 2013 के अंदर उन्हें वायलेट हो गया वास्ते। वायलेट होने जब से केस चल रही है, केस चलने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट शो करने के बाद 5-6 साल तो ऐसी बर्बाद कर दिए। वो पेपर लाओ, ये पेपर लाओ बोल के पूरा वंशवाणियाँ निकालने लगा है, ये गजेट निकालने लगा है। डीसी ऑफिस की गजेट है ये। 24 में हुआ था ना आपको? नहीं, हाँ, वो उतने साल बर्बाद करने के बाद 24 तक फिर 2013 से 2024 तक फिर आए। 24 में पूरे जाने के बाद ट्रिब्यूनल से उनको ऑर्डर हुआ कि इनको दियो बोल के। हमको आने के बाद फिर वही लोगों के हाथ में है वो। पूरा एडमिनिस्ट्रेटर बोलो मैं आपको, 1-2 नहीं, इनसे उन्हें फिरा रहा, उनसे इन्हें फिरा रहा। क्या करे मालूम है, ये चीज़ को नहीं होना बोल के रोज़ नया। अभी रिसेंटली क्या करे, 5 दिन पहले मेरे और मेरे कजन्स के नाम पे एक FIR भी बुक करे उन लोग कि इलीगली नो हमारे प्रॉपर्टी में इंक्रूजमेंट कर रहे बोल के, जबकि हम कोई वहाँ पर कदम भी नहीं रखे। अकबर हुसैनी तो डिमाइस हो गए 2-3 महीने पहले, और उनकी बच्चे है, उनके 3 बेटे हैं, उनके 2 भाई हैं, और उनके भाई के 4 बच्चे हैं। ये चारों मिलके हमारे ऊपर इलीगली एलिगेशंस लगा रहे कि हम लोग वहाँ पे आके ऐसा कर रहे वैसा कर रहे बोल के। लेकिन पूरे हमारी सोसाइटी को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे बोलकर। लेकिन चुप ऑन बेसिस क्या कर रहे बोले तो एक FIR पुलिस स्टेशन में, SP के पास, यहाँ तक कि DR में भी दिए उन्होंने। क्या दिया है बोले तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसके साथ मर्ज है हमारे की, जबकि ये प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी मेरा अपना जस्टिस चाहिए मेरे को। 1 साल पहले मुतवली ग्रांट हो गया है, अभी तक 1 साल हो गया, 1 साल 10 दिन हो गया आज। 2024 10 जुलाई को मेरे को ऑर्डर होने के बाद भी 2025 20 जुलाई आ गया आज। मैं ऑफिस कन जा रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से यही चाह रहा हूँ कि मेरे को राइट्स दिलाए जाए। वहाँ पर इलीगली कोई लेडीज़ वालों को, बाहर के लेडीज़ को लाके बिठाया जा रहा है। पुलिस वाले उनको डर के चले आ रहे हैं। लेडीज़ है भाई, वायलेशन कैसा करना उनके ऊपर, ये होना। तो आउटसाइडर्स को लेडीज़ बुलाने से क्या होता, मेरे राइट्स मेरे को देना। उन्होंने 10 लेडीज़ को बुलाते हैं और वहाँ पर 50 लेडीज़ को बुलाते हैं उन्होंने। गार्ड्स नहीं है मैडम, वो आउटसाइडर्स है कोई तो भी। बाहर वाले पूरे आके बैठ जा रहे, 150 लेडीज़ को बाहर वालों को बुला ले रहे वो लोग। एक ही जेंट्स उनके ऊपर कुछ भी एलिगेशन नहीं लगाना, वो है बल्कि लेडीज़ को सामने फेस कर रहे हैं उन लोग। वक्फ ऑफिसर से, मेरे मेन एडमिनिस्ट्रेटर से मेरा यही मुतालबा है कि मेरे को ये जब मुतवली बोल के दिए, 1 साल हो गया, अभी 2 साल रिमेनिंग है मेरा, तो मैं क्या करूं बताइए मेरे को। अब कल के दिन उन्हीं के हाथ में फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है, उन्हें आके कल के दिन फिर वेरिफिकेशन होता 3 साल के बाद। अब रहे उनके हाथ में चाबी है, उनके हाथ में प्रोटेक्शन है बोल के उनके हक में फैसला करता। मैं ये नहीं चाह रहा। पहले फर्स्ट तो ये चाह रहा हूँ कि मैं ये मुतवली होने के बावजूद मेरा हैंड ओवर नहीं करे मेरे को ये चीज़। ना मेरे को वहाँ का अकाउंट्स हैंड ओवर कर रहे, ना मेरे को वहाँ के आर्टिकल्स हैंड ओवर कर रहे, ना मेरे को वहाँ के अलम आर्टिकल्स हैंड ओवर कर रहे, ना मेरे को वहाँ की प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहे। ये हमारे बाप दादा से चले आते रहे मैडम। मेरे एक ग्रैंडफादर नहीं है ये। हम जहाँ पे मेरे जो अगर जनरेशन देखिए, ये मेरी 6th जनरेशन है जो हमारे करे। बीच में जो मुतवली ग्रांट करे वो एक ही मुतवली अलग आया, बाकी के पूरे मेरे फरफादर जो है 7-6 पीढ़ी से हम लोग ही कर लेते आ रहे हैं यहाँ पर। और गज़ेट में भी हमारा ही नाम है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम है। ग्रैंडफादर जो है 3 भाई थे, जिसमें से 2 डिमाइस हो गए, जो इशूलेस थे, उनको बच्चे नहीं थे। एक भाई थे जो हम लोग है, और तीसरे आदमी को बुला के लास्ट टाइम पे जो हो गया बाई मिस्टेक हो गया, उसको हम फिर कंटिन्यूएशन नहीं करना चाह रहे थे बोल के फिर से हमको ग्रांट करें।